बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 5 चैप्टर 8। आज के चैप्टर का नाम है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, चोरी की सजा। पढ़ते हैं हम इसे आगे। नरेश एंड महेश वर नेबर्स। They had their houses in a village. Their fields were located at same distance from their houses and shared a common boundary. अब जो नरेश और महेश है वो दोनों नेबर थे, उनका घर आसपास था और तो और जो उनकी फील्ड थी वो भी आसपास ही थी। उनकी जो फील्ड थी वो आसपास होने के अलावा भी दे शेयर्ड अ कॉमन बाउंड्री, और उनकी जो बाउंड्री थी फील्ड की वो भी कॉमन थी। Their fields were small, so they could not yield or large produce. One day, they decided to sow the crop together so that they could work together and have a better large crop. This was how they became partners. अब क्योंकि वो बाउंड्री ज्यादा बड़ी नहीं थी तो उन्होंने सोचा क्यों ना साथ में ही खेती करें, तो दोनों साथ में खेती करते हैं और इस तरीके से वो दोनों पार्टनर्स बन जाते हैं। They decided to sow the crop of melon. They worked hard and soon the field became green with a lot of plants. They came to the field early in the morning and worked until it was dark. With time, the plants started to bear melons in a large number. They were happy to see their hard work bear good results. अब वो दोनों साथ में खेती करने लगे। उन्होंने सोचा क्यों ना मेलन उगाया जाए, तो दिन में आते और रात में जाते। इस तरीके से पूरी मेहनत के बाद उनकी खेत में बहुत हरी भरी पहले घास है फिर मेलन आए, और इस तरीके से वो दोनों बड़े खुश हुए अपने रिजल्ट से, अपनी मेहनत से। One day the melon started to ripen. They sat together and talked how they should divide the crop between themselves. They decided that each of them would pluck a basket of melons every day and sell in the market. अब जब मेलन है वो ripen शुरू हो गए तो उन्होंने बैठकर डिस्कस किया कि किस तरीके से हम इन्हें डिवाइड करें। तो उन्होंने सोचा कि हम बास्केट भर भर के मार्केट लेके जाते हैं और इन्हें सेल करते हैं। जब जो तरबूज थे वो पकने शुरू हो गए थे उसके बाद उन्होंने ऐसा डिसाइड किया। In the morning, both of Naresh and Mahesh came to the field. They found that there were not as many melons as they had left last night. अब अगले दिन जब सुबह को वो दोबारा उस खेत में आए तो उन्होंने देखा जितने तरबूज कल थे वो तो बहुत कम हो गए हैं। तरबूज की जो गिनती है वे कम होती जा रही है। नरेश said, "Where can so many melons go?" Mahesh said, "They must have been stolen." Naresh said, "What should we do?" Mahesh said, "I think we should lodge a complaint to the police." अब वो कहते हैं कि इतने सारे तरबूज कहाँ गए, तो एक जना कहता है पक्का चोरी होंगे। तो उससे फिर हमें क्या करना चाहिए? वो कहता है हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए इस बारे में। Never expect the police to come to examine the theft of melons, said Naresh. अब नरेश कहता है मुझे नहीं लगता कि पुलिस जो है वो तरबूज की चोरी को देखेगी, की जांच करेगी। They hardly bother for such trivial things. अब वे ये इतना महत्वपूर्ण चीज है ही नहीं, वे बिना महत्वपूर्ण चीज के ध्यान ही नहीं देंगे। What should we do then? अब वो कहते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए फिर? I think we should wait and watch, said Naresh. They shared the remaining ripe melons and went to market. Next day they found that the melons had been stolen once again. अब वो दिन सोचे कि चलो हमें वेट करना चाहिए, तो जितने मेलन्स वो बास्केट में भरते हैं बाजार में बेचने जाते हैं, फिर वो जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि फिर से उनके तरबूज जो है वो चोरी हो गए हैं। Naresh and Mahesh sat down together to find a solution to the problem. Then they made a plan. They set iron nails in the ground around the ripe melons. They also placed thorny bushes around the field. Then they returned to the field after dinner and hid themselves in the neighbor's field. अब उन्होंने एक प्लान बनाया कि ऐसे नुकीले जैसे वो फील्ड में चारों लगा रहे पके हुए तरबूज के बराबर, और वहीं पे खाना आने के बाद वहां पे छुप गए देखने के लिए कौन उनके तरबूज चुरा रहा है। At the stroke of midnight, they heard a painful scream. They got up and lit the torch immediately. They saw there was a man who was limping away from their field. They ran after and caught him. अब इतने में उन्हें बहुत तेजी से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो वहां पे पहुंचे तो एक आदमी भाग ही रहा होता है, दर्द के मारे वो उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ लेते हैं।
The man was Atul. He belonged to the same village. He confessed to the theft and begged sorry. अब वो आदमी अतुल था जो उनके गांव में ही रहता था और उसने उनसे माफी भी मांगी ऐसे करने पर, अपनी चोरी एक्सेप्ट करते हुए. However, Narration Mahesh took him to the village Sarpanch. There, Atul had to pay the price of the melon he had stolen. He had earned a bad name in the village. Nobody liked to have anything to do with him. लेकिन उसके बाद भी उन दोनों ने उसे सरपंच के पास ले गया. उसने उसके पैसे तो दिए ही जो उसने चुराया था, लेकिन अब उसकी इमेज इतनी बुरी बन गई है कि कोई उसके आसपास नहीं जाता, कोई उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता. ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.